أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. And a very good day to all our distinguished participants. Am I audible? Please kindly. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Thank you. Thank you. It is my absolute pleasure to welcome you all to today's highly anticipated webinar featuring a trailblazer in the digital finance landscape. Mr. Hamza Khan is a regional operations lead for MENA and South Asia at Binance. Mr. Hamza is a seasoned professional with vast experience in the evolving domains of DEFI, CEFI, and regulatory compliance across the Middle East, Africa, and South Asia. Over the past 3 years at Binance, he has played a pivotal role in the business development, early stage growth, and strategic partnerships, especially the context of government relations, blockchain, cross-border payments, and digital assets. Of particular relevance to today's session is his leadership in the launch of much anticipated Binance Sharia Earn program. That is indeed a groundbreaking initiative that aligns blockchain based financial solutions with Islamic finance principles, bridging innovation with ethics. That is the need of the time. He is also an alumni of NUST with a background in mechanics, robotics, and automation engineering, and a rare blend of technical expertise and strategic foresight. My humble request, if you have any questions, kindly do share your questions in the chat box. Considering the scarcity of time, we won't be able to answer your questions, but we will share the questions with the webinar with Mr. Hamza. He will respond to you via email. Thank you. Without further ado, let's begin our conversation. Mr. Hamza, over to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. First of all, a big thank you to Al Sadiq Institute, Mazhar Saab, and the team involved to inviting me. And obviously, thank you, ma'am, for the lovely introduction. For today's session, I'm glad to be part of the knowledge sharing we're going to be doing here today. This has been a product that has been in the works for quite a while. Obviously, similar products के बारे में भी हम सोच रहे हैं, उसकी एवोल्यूशन भी सोच रहे हैं, इन वर्टिकल्स पे भी थोड़ा काम कर रहे हैं, एंड थिंकिंग कि भाई what is the next step of the evolution of blockchain and Islamic finance. If we think about it generally, right, so blockchain compared to traditional finance is the technology जिसके अंदर आपके पास visibility होती है चीज़ों की. And वो एक visibility through transactions, through holdings, through management is quite imperative and quite critical to the next evolution of Islamic finance. So with that vision in mind, this is one of our first products in this space. And I've had the opportunity to build, lead, and design it. So it's been a great honor. I think the initial video में मुफ्ती इरशाद साहब भी थे, तो उनसे भी काफ़ी discussions थी on this product, different products in the space, and क्या हम कर सकते हैं. Obviously, this is step one of the entire process because the larger scope is the crypto blockchain market size is about $4 trillion today globally. Islamic finance का भी market size is just above that. तो जब आप एक नेटवर्क इफेक्ट के बारे में सोचते हैं एंड पैरेलल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, ग्रोथ रेट्स देखते हैं दोनों इंडस्ट्रीज के इन द लास्ट डेकेड, तो इट्स ओनली नेचुरल कि दिस happened, right? And more will come in the next few years.
So happy to have played a small part, and yeah, happy to be here. If there's an agenda for today, please do let me know. Or else maybe what I can do now is let me share my screen. मैं ये कर लेता हूँ, I'll just go over the product quickly. तो आपको वहाँ से समझ आ जाए what it is, and then we can go into any questions that you have for the rest of the session. So if my screen's visible, please do let me know. Yes, it is. Yeah. Perfect. ठीक है. So first of all, let me zoom out for a second. So Binance is the global #1 crypto exchange, right? अभी आप देख सकते हैं we have about 283 million users, which is quite huge, I think, in the financial industry space. Again, if it had to be a country, it would be one of the top 10, top 5 countries in the world. So you can tell कि कितने लोग ये product use करते हैं. And अब जब एक global platform हमारे पास है, तो it's important for us to launch something that is compliant at a global level, right? We launch a lot of products, we work on a lot of things. तो जब हम इसके बारे में सोच रहे थे, we thought कि what is an innovative thing to do, और उसके ऊपर क्या कहते हैं, इसको compliant कैसे कर सकते हैं. तो वहाँ से हमने अपने earn के vertical के अंदर एक Binance Sharia earn launch किया. So this is supposed to be a way to grow आपकी crypto holdings in line with Islamic principles. इसमें 3 tokens are available at launch, which is BNB, ETH and SOL. And वो भी हमारे rigorous selection criteria के through गए हैं. The idea is कि in the Islamic finance world, काफ़ी thoughts and काफ़ी teachings finance के बारे में are towards savings, right? अगर आप if you look at the statistics, Pakistan के अंदर saving to investing ratios are quite low, right? In the single digit percentages. Globally, the world leader जो US है, for comparison, उसके 35 कोई % है investing saving ratios. So people always think of saving before investing. तो हमने ये सोचा what is a way to make your investments grow, and hence we launched this product जिसमें आप अपने investments को रख सकते हैं, उससे कमा सकते हैं, through a period of time. इसमें each token के अपने sort of returns हैं, right? Rate of returns जो हम up to defined हैं, and these are fluctuating based on market conditions and background क्या कहते हैं usage. तो these are predicted returns, right? उसमें आप देख सकते हैं what is the rate today, what is the rate in the next 24 hours, etc. The idea is कि these tokens, इनकी जो selection criteria जो हमने अमानी advisors के साथ किया है, is कि these tokens are used for something that is non-speculative primarily. ठीक है. BNB, अगर आप BNB, Solana and Ethereum, तीनों जो tokens are used primarily अपने network को build करने के लिए. तो BNB for example, इसका underlying जो blockchain है, जो उसका underlying network है, उसकी transactions और उसकी transaction fees for example are paid out or done in BNB. उसके जो contracts हैं, वो are paid out and done in BNB. उसकी जो network की gas fees हैं are done in BNB. Similarly, Solana का, similarly Ethereum का. तो इन ये जो assets हैं, they're not just sitting there, they're not just used for speculation, जो आपको parallels, for example, meme coins मिलेंगे, जो कोई भी बना सकता है, कोई भी speculate कर सकता है, और उस पर फिर आपकी growth होती है. तो वो speculation से हटने के लिए हमने, अपने token selections minimum रखे. There are a lot of tokens we could have added, honestly speaking.
लेकिन हमने कहा कि हम इनसे टेस्ट करते हैं एट द वेरी स्टार्ट. This product obviously is fully certified with Amani advisors. तो ये हमारा फतवा है with regards to that. इसका जो स्ट्रक्चर है is a वकाला agreement structure, जिसके अंदर वकालत आप एक एंटिटी को देते हैं which is owned by Binance, और वो एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके इन्वेस्टमेंट्स आर मेट आर फुली कंप्लाइंट. और ऑब्वियसली इट्स नॉट जस्ट दैट, डिपेंडेंसी वापस अमानी को भी आती है कि वो चेक करें, वो ऑडिट करें कि हम लोग अपना काम सही से कर रहे हैं. तो इस प्रोडक्ट के अंडर हमने अपनी तरफ से स्क्रीनिंग्स डाली हुई हैं, वैलिडेशंस डाले हुए हैं टू चेक अगेंस्ट दीज नॉन कंप्लाइंट कैटेगरीज, जो आप अभी यहाँ देख सकते हैं. बट इवन बियॉन्ड दिस, जो हमारे बैक एंड पे असल जो वेरिफिकेशन सिस्टम है, जो चेक्स हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस आर अ कैटेगरी ऑफ अबाउट 73 चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसके अंदर हम चेक करते हैं. दीज आर द ones जो हमें एडवाइजर्स ने कहा है कि शुड सफाइस फॉर द पर्पसेस ऑफ द प्रोडक्ट. सो Ji, benefits and features, obviously, these are fully Sharia certified. This is the world's first multi-token innovation. There have been experiments जहाँ एक token से लोग stake कर रहे होते हैं, etc. लेकिन multi tokens or different tokens को use करते हुए, this is the only one फिलहाल दुनिया में that does that. Obviously, this is available throughout about 30 plus jurisdictions. हमारे main launch markets are the Middle East, South Asia, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आपके इंडोनेशिया के साइड पे, एंड CIS-CEE रीजन्स, मतलब आपके उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एंड अदर नॉर्दर्न रीजन्स इसमें इंक्लूड होते हैं. दिस इज़ ऑब्वियस, इसमें ये भी एक चीज़ है कि दिस इज़ ऑब्वियसली हमारे जो स्ट्रक्चर के अंडर, फॉर एग्जांपल UAE हो गया, बहरीन हो गया, या कजाकिस्तान हो गया, वहाँ क्रिप्टो के बारे में काफ़ी लीगैलिटीज़ हैं, एंड उन लीगैलिटीज़ के अगेंस्ट भी ये चेक हुआ है. तो लोकल गवर्नमेंट्स ने भी चेक किया है टू मेक श्योर कि उसी फ्रेमवर्क्स में आ रहे हैं. अगर जो हम बोल रहे हैं वो सही है, और उस बैकग्राउंड चेक्स के वो भी इन्वॉल्व थे इसके करने पर. फिलहाल ऑब्वियसली हम थोड़े प्रमोशंस लगाए हुए हैं फॉर दोज यूजिंग द प्रोडक्ट्स, बट मोर देन दैट हमने यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी रखाए हुए हैं कि इज़ इट रियली कंप्लायंट, कैसे कंप्लायंट है, हम रिबा और गरार के कैसे उसको मिटिगेट कर रहे हैं, हमारे बाकी प्रोडक्ट्स में से क्या डिफरेंसेस है, रिवॉर्ड्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, हम रेट ऑफ रिटर्न जो कॉमनली APR कहलाया जाता है नॉन इस्लामिक प्रोडक्ट्स में, वो इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ रिटर्न हियर. फिर क्रिप्टो के बारे में कि क्रिप्टो की स्टैंस क्या है इस्लाम के अंदर, राइट. तो उसके बारे में अगेन ये सारे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, इसके ओपिनियंस भी हमने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ही लिए हैं. हम अपने आप को डेफिनेटली एक्सपर्ट्स नहीं कंसिडर करते, बट ऑब्वियसली जो उलमा है उनसे पूछताछ के ये हमने सर जवाब लिखे हैं. एंड दैट्स मोर लेस व्हाट द प्रोडक्ट इज टुडे. ऑब्वियसली इसमें काफ़ी इन्हांसमेंट्स हम प्लान करेंगे इन द नियर फ्यूचर, इंक्लूडिंग एडिंग मोर टोकन्स, इसका फ्रंट एंड थोड़ा बेहतर बनाना. I think there's many enhancements we're thinking of now. But so far, अल्हम्दुलिल्लाह से रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है हमें. Over the 30, अभी तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं since launch, and response has been overwhelmingly positive. I think हमारे सर्वे के अंदर over 90 to 92% पॉजिटिव हमें रिस्पॉन्सेज आए हैं. तकरीबन 3% हमें न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज आए हैं.
एंड तकरीबन 5% हमें नेगेटिव रिस्पॉन्सेज हैं, विच इज स्टिल क्वाइट हेल्दी। एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज में प्राइमरली हमारे सवाल थे कि ये आप कैसे, ये हलाल कैसे है, फतवा किसने जारी किया, इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल, बट जिन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया है इटसेल्फ इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑब्वियसली मैं अर्ज करूँगा आप भी ट्राई करें, पाकिस्तान में ज़रूर अवेलेबल है, अगर आपके बाइनेंस अकाउंट्स हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। And yeah, that's the presentation from my side. I know Abbas and Abbas had a few questions. So we can do those questions, we can do open floor questions जैसे आप चाहते हैं, in the interest of time हम करें. Over to you. Are there any questions? अच्छा, I mean, I have a few questions जो commonly पूछे गए हैं और जो आपकी टीम से भी मुझे आए. Number one, how has the Muslim crypto community responded to this initiative? As I mentioned, definitely positive. थोड़े comments उस पे भी थे कि it's जो rate of returns है are not that lucrative compared to other crypto products. तो हम इसे use करें ना करें. I think the novelty here is कि obviously Islamic product है, fully certified है, तो एक हलाल तरीके में, guaranteed हलाल तरीके में जब आप कमा रहे हैं तो I think वो should serve as incentive enough. अच्छा, now I see hands. जी, जैन भाई, go ahead. फराज भाई, जिसने भी सवाल जी जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है वो- आपको? जी जी, वालेकुम अस्सलाम. जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा ऐसा था क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट मैंने ज्वाइन किया। मैं जस्ट एक स्ट्रक्चर को समझना चाह रहा हूँ। लाइक हम लोगों ने सोलाना पे या जो भी शरिया बाइनांस पे भी लेटेस्टली मैंने भी ऑप्शन देखा है, बिकॉज मैं स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ। तो बिकॉज क्योंकि आपको पता है कि फ्यूचर पे अभी मोस्टली हमें गाइडेंस चाहिए इस हवाले से, कोई ख़ास शरिया के हवाले से हमें मौसूल नहीं हुई कोई चीज़ें। तो ये ऑप्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा था। एंड मैं जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली वो क्या है। काइंडली एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझाएं कि किसके थ्रू ये प्रॉफिटिंग और ये तमाम जो रेशोज हैं जो डिसाइडेड की गई हैं। मोस्टली ऐसा होता है ना, जब हम शरिया में जाते हैं तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चलते हैं। सो इसके अंदर कितने कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूड हैं, या कितने, या कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी बेस पे ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू जैन भाई. तो हमारा मेन जो स्ट्रक्चर है, हमारा अमानी एडवाइजर्स के साथ हमने एक वकालत का स्ट्रक्चर बनाया. इसमें जो प्राइमरी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एज अ यूजर इज अ वकालत स्ट्रक्चर, जिसमें बाइनेंस का एक स्ट्रक्चर एक्ट्स एज द वकील, और वो वकील आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क, आई मीन इन्वेस्टमेंट का काउंटर पार्टी रिस्क होल्ड करता है, right? तो um, वो मेन स्ट्रक्चर है. बैक एंड पे जो ब्लॉकचेन पे स्ट्रक्चर है, इट इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपके जो रेट ऑफ रिटर्न्स है आर डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन नेटवर्क इफेक्ट्स, नेटवर्क कंजेशन, नेटवर्क यूजेज एक्सेट्रा, जैसे नॉर्मल स्टेकिंग में होता है. तो उसके अंदर हम हमारा जो मेन ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर है, वो हम वैलिडेटर्स के साथ साथ काम करते हैं, जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो इनिशियली मैंने दिखाए थे उनके उनको स्क्रीन, पहले उन वैलिडेटर्स को सेलेक्ट किया और वैलिडेटर्स को स्क्रीन किया कि वो वैलिडेटर्स कोई हराम कैटेगरी से तो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, कोई हराम कैटेगरी से मुनाफा तो नहीं कर रहे, सच एज गैम्बलिंग, इंटरेस्ट बेरिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. तो उनको स्क्रीन करने के बाद एक सेलेक्ट वैलिडेटर्स को हमने सेलेक्ट किया जिन पे आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका वकील जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है वो उनके साथ काम करके आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल करता है. आपके फंड जो होते हैं सेग्रीगेटेड सॉर्ट ऑफ डेडिकेटेड अर्न वॉलेट के अंदर होते हैं, और वो डेडिकेटेड वॉलेट से आपको फिर रिटर्न वापस मिलता है. तो रफली ऐसा स्ट्रक्चर, आई मीन इन डेप्थ फिर आप वो हम देख सकते हैं एग्जैक्टली क्या क्या है. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स बैक एंड पे.
जी I hope that answers your question. जी अस्सलाम वालेकुम सैयद फराज अहमद बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये पूछना था, बिगनर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, जो यानी इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं, कि कौन सी आपकी प्रोडक्ट यूज़ करें जो थोड़ी सी सिक्योर भी हो, जहाँ पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव ना हो, यानी स्पेकुलेटिव इन द सेंस ऑफ रिस्की नेचर, कौन सा बेहतर है आप लोगों की प्रोडक्ट्स में से? जी, तो ये थोड़ा एक काफ़ी ओवरआर्चिंग क्वेश्चन है। देखें, इस्लाम के अंदर रिस्क इज समथिंग दैट इज अलाउड एंड शुड बी नोन, राइट? आपको रिस्क पता होना चाहिए कि रिस्क क्या होता है। क्रिप्टो के अंदर जो अभी सॉर्ट ऑफ स्पेस है, उसके अंदर आपका रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा है ट्रेडिशनल मार्केट से, राइट? रिस्क ऑफ लूजिंग इन्वेस्टमेंट्स, रिस्क ऑफ लॉस, एंड ऑन द अदर साइड ऑफ इट ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट भी की पोटेंशियल ज़्यादा होती है। एंड इसके काफ़ी फैक्टर्स है, ऑब्वियसली इट्स अ स्मॉल स्मॉल इंडस्ट्री, तो प्राइस मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जैसे जैन भाई कह रहे थे, वो स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपका सूद नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं होता। उसके अंदर काफ़ी वैरायटी ऑफ टोकन्स होते हैं जो हम डिफाइन नहीं करते, बट मार्केट में डिफाइंड होते हैं कि भाई दीज आर लाइक ब्लू चिप टोकन्स। ब्लू चिप मतलब कि दीज आर बेस्ट इन क्लास टोकन्स, बिटकॉइन, इथेरियम हो गया। फिर आपके पास मीम कॉइन्स आ गए जो स्पेकुलेटिव इन नेचर होते हैं, जो कोई भी लॉन्च कर सकता है, वो प्राइस बहुत शूट करती है, कंट्रोलर्स कम होते हैं, और बैक एंड पे इसकी कोई वैल्यू ऐड नहीं होती। तो इस्लाम के भी तरीके से उस पर कोई अभी ओपिनियन नहीं जारी हुआ स्ट्रॉन्ग फॉर इट, उसके अगेंस्ट काफ़ी ओपिनियन है देखें। तो काफ़ी टोकन्स की कैटेगरीज हैं। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अपने टोकन की डेफिनेट रिसर्च करें। अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग कर चुके हैं एंड मे बी यू वांट टू अर्न ए वाइल विदाउट ट्रेडिंग, आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, तो आप शरिया अर्न जैसे प्रोडक्ट्स में भी आप वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो करके आप छोड़ दें, जो रेट ऑफ रिटर्न है वो आपको मिलता रहे। आप लोगों की प्रोडक्ट में पूछ रहा हूँ कौन सी बेहतर है, जो आप लोगों ने, आपने 3 प्रोडक्ट शायद बताई हैं अपनी। नहीं नहीं, वो 3 टोकन्स हैं, प्रोडक्ट एक ही है। उन 3 टोकन्स में आप अपना देख सकते हैं कि कौन सा आपके लिए मेक्स मोस्ट सेंस। Okay, Hamza, can you hear me? यस। Okay, Hamza, we have few questions for you. Uh, Considering a Muslim community, Muslim country, uh, how has the Muslim crypto community responded to this particular Binance Sharia initiative? Have you seen any specific trends or feedback from users in the MENA and South Asian regions? And how can it be helpful for our local Pakistani community who are trading into this? Yes. So I shared this earlier as well, but I think quite positive. ज़्यादातर इन्वेस्टर्स यही साउथ एशिया, पाकिस्तान और इंडोनेशिया रीजन से आ रहे हैं। हम देख रहे हैं मिडल ईस्ट से भी काफ़ी आ रहे हैं। काफ़ी मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज भी हमें आए हैं, बट आई थिंक 92-93% हमारे पॉजिटिव ओवरऑल वो है रिस्पॉन्सेज। That's very encouraging, I must say. Now, moving to the structure of the product itself, how are profits computed and calculated and then further on distributed to the users in a Sharia compliant manner? What mechanisms are in place to ensure, apart from this, that you have described that Amana is going to do audits and all these things? How you are going to ensure transparency and fairness in particular? Thank you. Yeah, so obviously the certification is one thing, right? तो हमारे एंड पे लाइबिलिटी आती है कि हम लोग इसको सिक्योर करें। लकीली ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है। तो अभी भी आप अपनी या किसी और की भी आप इन्वेस्टमेंट्स देख सकते हैं। ऑब्वियसली उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, बट देख सकते हैं आपके फंड्स किधर इस्तेमाल हो रहे हैं, कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू, इस प्रोडक्ट के थ्रू। तो वो तो इंटरनेट पे रेडली अवेलेबल है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि हम लोग सेलेक्ट वैलिडेटर्स के साथ काम करते हैं दैट आर स्क्रीन्ड अगेंस्ट नॉन कंप्लाइंट या हराम कैटेगरीज, कि आपकी जो अर्निंग्स हैं डोंट कम फ्रॉम एनीथिंग सच एज गैम्बलिंग,
pornography etc. like उन सब चीज़ों से नहीं आएंगे। तो वो हम अपनी तरफ से स्क्रीनिंग करते हैं एंड वो स्क्रीनिंग इज़ ऑल्सो फिर एट दी यूज़र फ्रंट ऑब्वियसली हम एक वकालत स्ट्रक्चर रखते हैं कि हम आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि ये हलाल है तो हम उसकी गारंटी लेते हैं, उसका रिस्क बेयर करते हैं एंड ओवरसी आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स, और वहाँ से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन नेटवर्क इफेक्ट्स, नेटवर्क कंजेशन एंड नेटवर्क यूसेज। Okay, we have a question from Mr. Muhammad Idris. Muhammad Idris, please. जी थैंक यू हमजा आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा लोकल एनवायरनमेंट में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है बैंकिंग का उसमें हाउ डज इट फिट इन बिकॉज लेटली वी हैव बीन हियरिंग द क्रिप्टो इज नॉट द वन व्हिच यू कैन ट्रेड थ्रू बैंकिंग चैनल बिकॉज जो ट्रांसफर्स हैं वो उसमें आती हैं और लेटली वी हैव सीन के लोगों के अकाउंट्स भी इसमें ब्लॉक हुए हैं एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन गेटिंग द मनीज आउट ऑफ द बैंकिंग accounts. So how is there any change in regulation or what? Yeah, this is definitely a different topic from Sharia earn, but I'll answer. So luckily I've been at the forefront of the regulatory space as well in Pakistan. Or as of a month ago, excuse me, as of a month ago, ordinance passed हुई है पाकिस्तान में, which is towards the creation of a new regulator, which is called the Pakistan Virtual Asset Regulatory Authority. And उसका काम है to regulate the markets. अभी timelines हैं कि in the next 6 months उन्होंने deadline रखी है कि जो existing players हैं they need to be regulated. And for existing players to be regulated like us, we need local player support, local banking support. तो अभी लोकल बैंक्स भी इस पे अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं काफ़ी एक्टिवली। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स काफ़ी इस पे न्यूज़ आएंगी, यू विल सी अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड इवेंचुअली जब क्रिप्टो इकोसिस्टम में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट की भी अवेलेबिलिटी होगी, बट एज इट इज़ यू आर स्टिल एबल टू एक्सेस दिस प्रोडक्ट थ्रू बाइनेंस टुडे पाकिस्तान में बैठे हुए। नहीं वही एक्सेस तो हम कर पा रहे हैं और ट्रेडिंग भी आई अंडरस्टैंड के हो रही है बट द ट्रांजैक्शंस आर सिंस चैनल तो बैंकिंग चैनल ही है द पर्सन हु बाइज एंड द सेल द बोथ गेट पेमेंट्स थ्रू द बैंकिंग चैनल so what I understand that the channel is so far not legally approved am I No, correct no, it is now as of a month ago. तो so it's proved अभी नो हम नो बैंक अभी में अगर कोई ट्रांसफर आती है and I tell my bank that this is the sale of my crypto and purchase of my crypto so they have no issue with that सो द बैंक्स टुडे आर डूइंग देयर कैपेसिटी बिल्डिंग, वो अभी खुद इस पे सीख रहे हैं, तो आई कांट गारंटी कि बैंक अभी आपको खुद कहेगी कि हमें इसकी पूरी समझ है एक्सेट्रा, बट लाइक आई मेंशन इन द नेक्स्ट 6 months इंशाल्लाह यू विल सी के पीयर टू पीयर जैसे सिस्टम्स विल स्टार्ट गेटिंग सनसेट और डायरेक्ट आप अपने बैंक कार्ड्स या बैंक अकाउंट से क्रिप्टो खरीद सकते हैं। this is one thing that we buy crypto from bank directly or indirectly. What I'm saying is, for example, if I'm buying crypto from you, you have an account, I have an account on Binance, and we are trading with each other. But the movement of the cash has to happen through the banking account. That's what I understand. Yes, you're talking about peer-to-peer trades. So Yeah. peer-to-peer trades are often looked down upon. Abhi Pakistan maybe it's not like it's not seen as the best system to do it. गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अभी जैसा है चलने दो, राइट, बट 6 महीने के अंदर अगर नए सिस्टम से कंप्लाई नहीं किया तो फिर देयर विल बी रिपरकशंस, राइट। तो उस 6 महीने के अंदर अब बैंक्स को, हमें, डिफरेंट प्लेयर्स को, सबको अब लीगल फ्रेमवर्क के अंडर आना है कि ये पीयर टू पीयर एक्सचेंज, मेरे आपके बीच में एक्सचेंज प्रॉब्ली डजेंट हैपन एज ऑफन। अगर होता भी है इन द नियर फ्यूचर, मे बी सिस्टम्स लाइक रास्ट जो पीयर टू पीयर हैं उस पर क्रिप्टो अलाउ हो जाए, देयर इज मैनी इनोवेशंस इस पे आ सकती है। आई कांट से फॉर श्योर ये क्या ट्रांसफॉर्म होगा, बट आई कैन से कि इस पे काफ़ी सिग्निफिकेंट वर्किंग हो रही है एवरी सिंगल डे। Okay. Thank you. वेलकम। Okay, we have another question from Rushna. Rushna and Sabine.
Sabine, I'm unmuting you. Can you hear me, Sabine? So considering the scarcity of time and as we have discussed earlier, we are going to wrap up this session. And just one final question from you is that, can you hear me? Yes, yes. Okay, Hamza, risk management is a core concern for both regulators and faith-conscious investors. Could you elaborate on how risk is managed with Binance Sharia and products, particularly in terms of capital protection and ensuring returns are halal and free from gharar, riba, and all the speculative elements, please? Yeah, so I feel like I've answered this mostly, but इसमें एक चीज़ है capital protection, right? तो how do you do capital protection? अगर आप ये product use करते हैं, for example, अगर आप Ethereum या Solana को use करते हैं for the Sharia earned product, so you'll see that the moment you invest, you get a token of investment, which is a WBETH या BN Sol, Ethereum और Solana के against. तो वो जो token of investment is your proof of the investment. वो आप कभी भी cash out कर सकते हैं for your capital invested at market price today, right? तो what that means is कि for example आपने invest किया $100 और वो $100 के against आपका एक WBETH या BN Sol का token मिला जो equivalent है of $100. वो let's say कल को आपने cash out किया which is now at equivalent value of $94, right? तो वो risk आपका तो है of potential losses, but you can choose to cash it there 94 पे, you can keep it, and let's say 110 120 पे गया and you can cash it out there, right? तो कैपिटल जो है आपका इन्वेस्टेड जो है उसके अगेंस्ट आपके पास प्रूफ होता है at any time to say कि this is my capital investment, this is what it's worth, and this is the returns I invested it against. तो वो सारा ट्रांसपेरेंटली आपके पास अवेलेबल होता है at the moment you invest. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम. हाँ, सवाल मैंने ये पूछना था, आप जिन रिस्पोंडेंट का जिक्र कर रहे हैं कि 92-93% उनका पॉजिटिव वो था, तो क्या मैं ये जान सकती हूँ कि मतलब आपका जो वो था इंडिविजुअल्स, मतलब वो किस उस पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी और स्पेशली डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी का प्रॉब्लम है, और इसके अलावा शरिया कंप्लाइंट हैं कि नहीं है, शरिया बेस्ड हैं कि नहीं है, इन सब पे तो अवेयरनेस ही नहीं है। तो आप लोगों ने किन से एक तो डाटा लिया? दूसरी बात ये है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो अभी बहुत कंट्रोवर्शियल है जो डिफरेंट मुफ्तियान से, तो क्या आप ये समझते हैं कि फ्यूचर में ये शरिया कंप्लाइंट को, मतलब ये उसके 100% उसको क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं क्या ये जो प्रोडक्ट है आपकी? जी, वेरी वैलिड क्वेश्चन. तो वो जो हमने सर्विस किए, ऑब्वियसली हमारी कम्युनिटी दुनिया भर is quite huge, and in these markets तकरीबन it's probably more than half of our community of 300 million users across the globe. तो उन कम्युनिटी में से जिन्होंने यूज़ किया है, जिन्होंने प्रोडक्ट ट्राई किया है, उनके अगेंस्ट हमने सर्वे किया. नाउ ऑब्वियसली वो क्रिप्टो नेटिव है, उन्हें क्रिप्टो का पता है, उन्हें बाइनेंस का पता है, तो इट्स ईजियर फॉर देम टू हैव अ मोर पॉजिटिव रिस्पॉन्स, राइट? तो आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट देयर, लेकिन देखिए, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैंने अभी एक रिसर्च पेपर किया रिसेंटली, फिनटेक का इफेक्ट मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन में, और इस्लामिक बैंक के क्लाइंट से मैंने डाटा लिया। तो मतलब 40% तो रिस्पोंडेंट ऐसे थे जो परसीव्ड शरिया कंप्लाइंस के लिए या इस तरह के वेरिएबल्स के लिए उन्होंने न्यूट्रल को वो किया हुआ था, मतलब ना उनको अवेयरनेस है या वो जवाब नहीं देना चाहते। पाकिस्तान में तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड या ये फिनटेक के बारे में नहीं वो इतने क्लियर, तो इस पे कैसे हो सकते हैं? यकीन जाने हमारे मेजॉरिटी रिस्पोंडेंट्स पाकिस्तान से ही थे, हमारे सर्वेस के अंदर, एंड सबसे ज़्यादा हमारे यूजर्स भी इस प्रोडक्ट पाकिस्तान से ही, राइट? आई चले, कांट शेयर दी. अगर आप माइंड ना करें तो आप लोग हमसे ना ये सर्वे ज़रूर शेयर कीजिएगा।
ये मैं इंटरनल सर्वे की बात कर रहा हूँ, बट हम लोग पब्लिसाइज कर सकते हैं इसे अपने सोशल चैनल्स पे। तो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट फ्यू डेज वो जब बाइनेंस पाकिस्तान या कोई भी बाइनेंस के पेज पे आप देख सकते हैं, ये इसका पब्लिसाइज हम करेंगे इंशाल्लाह। ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया। जी थैंक बात यू चलो। जी। बाकी मैम आई थिंक लेट्स रैप अप द सेशन। अगर कोई सवाल है तो यू कैन फॉरवर्ड देम टू मी एंड इंशाल्लाह वो मैं ईमेल से रिस्पॉन्ड कर लूँगा। And we can go from there inshallah. Was ma'am here? जी हमजा भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। आई हैव अ लास्ट क्वेश्चन, अगर उसको एड्रेस कर दें थोड़ा सा। चलें चलें शो फिर। चलें। अच्छा, ऐसे है कि मोस्टली थिंग्स ऐसे हैं कि फ्यूचर के अंदर ना, ख़ास तौर पे अगर आपने देखा होगा तो सोशल मीडिया के ऊपर भी थोड़ा सा इस तरीके से चलता है कि वो फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, एंड देन उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं। उसके अंदर वॉल्यूम भी एंड प्लस इंडिकेटर्स वगैरह इस तरह की थिंग्स बात करते हैं। तो शरिया पर्सपेक्टिव से इसको हम किस तरीके से लेंगे? लाइक अगर हम जाहिर सी बात है, यही चीज़ें हम मोस्टली देखते भी हैं, इसके अंदर स्पोर्ट के अंदर भी देखते हैं, बट मोस्टली ज़्यादा यूज इसका फ्यूचर के अंदर होता है। सो क्या आप इस चीज़ को एलिब्रेट कर सकते हैं कि हम इसको शरिया प्रोस्पेक्टिव से कैसे देखेंगे? लाइक अगर एक इन फ्यूचर हम देख रहे हैं या इन फ्यूचर हम करना चाह रहे हैं ट्रेड, तो ये क्या चीज़ें इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं कि लाइक ये चीज़ को या प्रोडक्ट को हलाल करेंगी या नहीं करेंगी? काइंडली बताइए। जी। तो काफ़ी आई मीन देखें, इट्स हार्ड फॉर मी टू से क्या हलाल है क्या नहीं है। ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, राइट? उसके लिए उलमा एंड स्कॉलर्स आर बेटर suited, बट व्हाट आई कैन से देखें, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, दीज आर एनालिसिस दैट एग्जिस्ट टुडे ट्रेडिशनल फाइनेंस के। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में लोग करते आ रहे हैं फॉर सेंचुरीज। दिस इज स्टिल यू नो काफ़ी प्रेवलेंट। क्रिप्टो में भी वही चार्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं, क्रिप्टो में भी लोग करते आ रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस आर जस्ट टूल्स। ठीक। जहाँ तक टोकन्स ट्रेडेड, प्रोडक्ट्स यूजेज और आप उससे क्या करते हैं, कैसे ट्रेड्स करते हैं, कौन से प्रोडक्ट्स ट्रेड करते हैं, क्या उन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, क्या उन प्रोडक्ट्स में अनसर्टेनिटी है, क्या उसमें कोई रिस्क है ऑफ हलाल इनकम, हराम इनकम। तो वो आपने खुद ऑब्वियसली एक लेवल ऑफ रिसर्च एंड अंडरस्टैंडिंग आपको खुद डेवलप करनी होगी, एंड ऑब्वियसली रीच आउट टू स्कॉलर्स एज वेल। बट जैसे आपके फ्यूचर्स या डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसके अंदर आप इनहेरेंटली क्या कर रहे होते हैं, आप एक असासे से ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप एक असासे के प्राइस के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे होते हैं। जी तो रियल एसेट वो नहीं होता, और रियल एसेट के ऊपर आप लेवरेज कर रहे होते हैं, विच इज़ आप कह रहे होते हैं कि एग्जैक्टली, वो मल्टीप्लाई बाय 200x और मल्टीप्लाई पेड। एग्जैक्टली। या तो वो लेवरेज इटसेल्फ इज नॉट अ हलाल कॉन्सेप्ट एज फार एज आई एम या अवेयर, एंड एग्जैक्टली। उस लेवरेज को मेंटेन करने के लिए आपने इंटरेस्ट देना होता है। तो दैट लाइक मैं आल्सो सॉरी इज। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट जी कर रहा हूँ। लाइक लोग लिवरेज लेते हैं प्लस मल्टीप्लाई 100x 200x 500x। जी। आप लिवरेज को निकाल दें, then हम्म। I think we have elements like we have a gharar element Then I and have to interrupt. I'm जी sorry, our session is till 3:30. If you have any questions, as I have mentioned in the chat box, just mention your email ID, write down your questions, and it will be forwarded to Mr. Hamza. चलें, thank you very much. Because we have agreed upon time that he will make his presentation and he has to wrap up quickly. He has his own professional commitments. So my sincere apology to you, Zen.
for It's all right. interrupting Thank in you very between. much. Thank you very much. I apologize. Okay, so thank you, Hamza, for so much for your thoughts, for your time, insight, and candor today. Your thoughts on how ethical finance, Sharia principles, and topmost, the most important thing is the cutting edge blockchain solutions. How can they converge and truly add depth to this discussion? As the global finance landscape evolves, initiatives like Binance Sharia Earn offer a glimpse into what an inclusive, value based financial future could look like, not just for Muslim communities, but also for everyone seeking fairness, transparency, and innovation. My sincere request to all of you, if you have questions, do connect with our team. We have shared, I guess, and believe that we have shared our email ID and social media handles. For more webinars like this, stay connected with us. And on behalf of our team and audience, we extend our sincere gratitude to Mr. Hamza for his valuable time and to the organizing team for such a thought provoking and very, very much pertinent to time this webinar. Again, Jazakallah khair. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.